Good morning, my dear students. I wish you all are doing well in your life. Keep studying hard and keep working hard like that. Okay, this side here Priyanka, your biology mentor to help you with your queries regarding biology. So, students, in our previous class, we had studied about the first kingdom, that is first kingdom of five kingdom system of classification, which was given by R.H. Whittaker in 1969. As you know, in our first kingdom, we studied about the sole members of the first kingdom. And who are they? Who are the sole members of the kingdom Monera? We had studied that those were bacteria. And you know, my dear students, bacteria are prokaryotic organisms. Pro means primitive and karyotic, we had studied karyotic means it refers to the karyon, it means nucleus. So, bacteria are very primitive organisms. Their cellular organization is very simple. Okay, that's why they can live thousands and millions of years. Okay, and you know that in our previous class we had studied about their cellular organizations, their body organization, their nutrition type, their reproduction as well as their nutrition. So, let's briefly recall what we had studied in our previous class. We had studied about their general features. It means if we take a handful of soil, we will see that a lot of bacteria are there, a lot of microorganisms are present. Microorganisms means, it means which cannot be seen in naked eye. It means whenever we need to see them, we need a microscope. Without a microscope, it is very hard to see in our naked eyes. Okay, and what we have studied? We have studied about their general features as well as cellular organism. It means they are very prokaryotic organisms. Prokaryotic means their nucleus is not membrane bound, as well as a lot of membrane bound organelles are not present within them, as well as we have studied about their nutrition type. And in nutrition type we had studied there are a lot of bacteria who can be as well as autotrophic as well as who can be as well as heterotrophic. In our autotrophic category, we had studied that autotrophic can also be subdivided into two categories like photosynthetic as well as chemosynthetic. Photosynthetic as well as chemosynthetic. And in heterotrophic, we had also studied that heterotrophic subcategory is also subdivided into three categories, just like parasitic, just like saprophytic, and just like what is that? Symbiotic. These features we had studied in our previous classes, and today we are going to study about the next kingdom, about the second kingdom of the five kingdom system of classification, which is kingdom Protista. So, in kingdom Protista also we will go sequentially. Okay, we will study sequentially. Okay, first we will study in kingdom Protista also we will see about their general features. Okay, we will see about their general features, their habitat, where do they live, their habitat, where they are found, okay, their habitat, their cellular organization, their mode of nutrition, if do they have flagella or not. Okay, flagella as well as some extra features we will study here. Okay, as well as some extra features we will study in kingdom Protista, some extra features. Okay, students, if we will divide this kingdom on their nutrition basis, then we will see that three categories are there. Okay, three categories are there. What are they? There, first one is saprophytic, photosynthetic
as well as parasitic. आमे जदि किंगडम प्रोटिस्टा को आमे कौन करबा तांकर न्यूट्रिशन बेसिस रे तांको इजीली स्टडी करिया पई आमे जे तांकर न्यूट्रिशन बेसिस रे ताको कौन कर दबा डिवाइड कर दबा ताले हमको बहुत इजी हबो पढिबा पई बहुत इजीली आमे कौन करबा से जिंसटा को पढी परिबा जानि परिबा तो if we will divide the kingdom protista on their nutrition basis we will see that there are three categories and what are they first one is photosynthetic second one is saprophytic and third one is parasitic so each and every जो categories देखिले ता अंडर रे किछटा मेंबर्स आसुछंती ता अंडर रे प्रोटिस्टा रो किछटा मेंबर्स आसुछंती आ समस्तंकर हमें इंडिविजुअल फीचर्स पढिबा ओके लेट्स सी फर्स्ट वन इज photosynthetic okay second one is saprophytic third one is parasitic in photosynthetic category we can see there are three members of protista okay and who are they first one is chrysophytes another member can be dinoflagellates and another member can be euglenoids okay euglenoids these three members we will see in the photosynthetic category okay and if we will look into the saprophytic category then we will see another member and that member is slime molds and the remaining parasitic category we will see protozoans okay protozoans तमाने आमे जो किंगडम प्रोटिस्टा देखुचे से जो किंगडम प्रोटिस्टा अंडर रे आमे कौन करिबा मेनली मुख्यतः पांचटा मेंबर को स्टडी करिबा ओके पढ़िबा एटा ही तुम एनसीईआरटी रे देइची एनसीईआरटी रे पांचटा मेंबर को विषय रे मेंशन अछि हला तो सेटा को आहुरी इजीली ताको कोन करिया पई ना जानिबा पई ताको आहुरी इजीली हमें जेमती सीक्वेंशियली पढ़ी परिबा तो सेति पई मु ताको कोन कर देली ना आहुरी तीनटा ताकर न्यूट्रिशन बेसिस को नेकी ताको कोन कर देली ना मु तीनटा कैटेगरी रे डिवाइड कर देली काहे कि एमानकर न्यूट्रिशन टाइप ही एमती किछटा हमको देखिबा को मिलिबे सैप्रोफाइटिक some we will see that they are photosynthetic and some we will see that they are parasitic so prathame first we will look into the photosynthetic category okay तो प्रथमे आमे photosynthetic category को देखिबा okay clear तो photosynthetic category रे हमर आछंती तीनटा members and who are they first one is chrysophytes second one is dinoflagellates and third one is euglenoids so प्रथमे आमे क्राइसोफाइट रो आमे कोन करबा ईच मेंबर रो आमे प्रथमे हैबिटेट देखिबा ईच मेंबर रो आमे तापर देखिबा कि सेमाने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन केमदी रहउची तांको बॉडी रे फ्लैजेला प्रेजेंट अछि कि एब्सेंट अछि आउ कोन कोन सब तांकर एक्स्ट्रा फीचर रहउची सीक्वेंशियली आमे ईच फीचर को तांकर देखिबा ओके सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट मेंबर दैट इज क्राइसोफाइट्स ओके ता पूर्व प्रोटिस्टा रो किछटा जनरल फीचर त मानु कहि दोजी तम माने किंगडम मोनेरा रे देखिथिलो कि से माने कोन रहउछन्ती दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बट इन हियर in kingdom protista you will see they are also unicellular organisms but they are little bit well developed organisms. It means their cellular organization, their cell system is well developed, little bit well developed. मोनेरा रे में देखिथिले से माने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थिले बट एठी हमें देखिबा कि से माने यूकैरियोटिक. किंगडम मोनेरा को छाड़ी देले बाकी तमरा जेतेटा भी सब चारटा किंगडम रहिला, किंगडम प्रोटिस्टा हे गेला, किंगडम फंजाई हे गेला, किंगडम प्लांटाई हे गेला, एज वेल एज किंगडम एनिमलिया हे गेला, समस्त अंकर यूकैरियोटिक सिस्टम हमें देखिबा को पाउ. तो एटा प्रोटिस्टा आसी गेला माने एथरा हमें कोन देखिबा को पाइबा, यूकैरियोटिक सिस्टम हमें देखिबा को पाइबा यूकैरियोटिक.
यूकैरियोटिक सिस्टम आम देखा पाइबा प्रोटिस्टा सेल्स आर यूकैरियोटिक with a well defined nucleus and membrane bound organelles. So what is eukaryotic? What is eukaryotic? In eukaryotic we can see that there are two words that are embedded within the word. First one is eu and another one is karyotic. Eu means well developed, karyotic carrion means nucleus. ता माने eukaryotic रे में देखुछु कि हम दुईटा वर्ड देखुछु. फर्स्ट हूँ कौन यू एंड सेकेंड वर्ड हूँ जो कार्योटिक अच्छी मैंने हूँ कार्यन वर्ड रू आसी मैंने कार्यन मीन्स न्यूक्लियस ताने एमानकर आम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखा पाऊँ तुम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस किंगडम मोनेरा को मन पकाओ गोटे मुझे कौन करुच्ची ना किंगडम मोनेरा गोटे ऑर्गेनिज्म करुच्ची एज वेल एज किंगडम प्रोटिस्टार गोटे मो ऑर्गेनिज्म करुच्ची तो तुम मैंने इजिली यू विल इजिली आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एज वेल एज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए eukaryotic nucleus. You will easily identify them. Okay. This is a prokaryotic organism. Prokaryotic organism cell. Okay. Here I am drawing an eukaryotic organism cell. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रे तुम देखुछ सिंपली गोटे साइटोप्लाज्म रे तार कोन रहउची न्यूक्लियस प्रेजेंट रहउची आ सेटा कोन गोटे प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट भीतर रहउनी बट आम जो यूकैरियोटिक सेल रो आम न्यूक्लियस को देखुचे तार न्यूक्लियस टा पूरा प्रॉपर गोटे वेल डिफाइंड सिस्टम भीतर अछि जेमति कि देखि दियो तार कोन चारिटा देखिबो तार मेनली चारटा तुम देखिबो कि तार चारटा स्ट्रक्चर रहउची फर्स्ट रहउची तार कोन आउटर वाटर आम मु कहितली जत्ते बेले भी आम पढिबा आम सब बेले आउटर सरफेस रो इनर सरफेस आड़ को सिक्वेन्शियली पढ़ा ओके तो फर्स्ट आम देखुचे से जो न्यूक्लियस रोची तार आउटर रे कौन रहा प्रथम रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा भितर आमर साइटोप्लाज्म जेमती तुम साइटोप्लाज्म रोची सेमती तुम न्यूक्लियस भितर भी तुम गोटे फ्लूइड रोची जोटा आम कौन कहूँ न्यूक्लियर प्लाज्म कहूँ ओके तो आउ कौन रोची एमती क्रोमैटिन नेटवर्क टाइप रो आमर कौन रोची ना क्रोमोजोम रोची ता सहित न्यूक्लियोलस रोची तो देखुच माने केते डिफरेंस रोची गोटे प्रोकैरियोटिक आ गोटे यूकैरियोटिक सिस्टम ऑफ कौन ऑर्गेनाइजेशन भितर तो तुम एथुर जानि परलो कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक ओके दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तुम एटा जानछो तुमरो प्रीवियस क्लास रे भी कुहाइतला जिंसटा कि प्रोटिस्टा रे किंगडम मोनेरा रे आमे कौन करवा ना किंगडम मोनेरा रे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखिया को पाइबानी बट वंस हमर यूकैरियोटिक सिस्टम को पळे आसला माने आमे सेथरे जानि परजो सेथरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट अछंती आ तमरे जो किंगडम प्रोटिस्टा देखुछो सेथरे यूनिसेलुलर एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आमे देखिबा को पाइबा किंगडम प्रोटिस्टा रे आमे जनरली पांचटा मेंबर देखिबा को पाइबा फर्स्ट होचंती क्राइसोफाइट्स सेकंड होचंती कोन डाइनोफ्लाजेलेट्स थर्ड होची तमर यूग्लिनॉइड फोर्थ होची तमर स्लाइम मोल्ड एज वेल एज फिफ्थ होची तमर कोन प्रोटोजोआन्स ओके व्हाट आर द फाइव मेंबर्स वी विल स्टडी इन दिस किंगडम प्रोटिस्टा फर्स्ट वन इज क्राइसोफाइट्स second one is dinoflagellates third one is euglenoid fourth one is slime mold and fifth one is protozoans first तीनटा को आमे रखि देले कोथरे ना ऑटोट्रोपिक से मानु आमे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रे रखि देले फोटोसिंथेटिक कैटेगरी रे रखि देले सेकंड टा को आमे रखि देले कोथरे ना तमरो सैप्रोफाइटिक थर्ड टाक आम रखीदे कौन ना तुम पैरासाइटिक कैटेगरी रे तो ईच एवं मेम्बर को आम देखा ईच मेम्बर आम कौन करवा ना जनरल फीचर तांकर जहाँ भी सब एक्स्ट्रा फीचर अच्छे सब देखा फर्स्ट आम देखा क्राइसोफाइट्स को फर्स्ट आम देखा फर्स्ट वी विल लुक इनटू द क्राइसोफाइट मेम्बर ओके सो तुम जो क्राइसोफाइट्स आसूची ताथरे भी तुम देखिबो अगेन दुईटा सब कैटेगोरीज अच्छी तो ये क्राइसोफाइट्स जो देखुच तो से तुम डायटम्स भी आसी पारंती से तुम गोल्डन एल्जी भी आसी पारंती मेनली से माने देखा जाती ओके डायटम्स एज वेल एज डेस्मिड गोल्डन एल्जी को डेस्मिड बोली भी कहती ओके डेस्मिड बोली भी कहती
डाइएटम्स as well as डेस्मिड। आ कौन देखिए आमे तांको विषय रे ये जो क्राइसोफाइट्स थांती से माने पैसिवली कौन करंती ना फ्लोट करि पारंती से माने पैसिवली वाटर करंट रे फ्लो करि पारंती काहे कि ना देखो व्हाई इट इज रिटन दैट दे पैसिवली फ्लोट इन वाटर करेंट्स इट मीन्स दे डू नॉट हैव फ्लैजेला जदि तांकर फ्लैजेला थांता ताहले से माने तांकर निजर जो सेल को जो आड़ को चाहि थांते से आड़ को नै जाई पार थांते जेहेतु तांकर फ्लैजेला एब्सेंट अछि तो से माने कोन करिवे ना वाटर करेंट तांको जो आड़ को नबो तो से माने से आड़ को कौन करेंगे गति करेंगे ओके दे विल मूव इन द वाटर करेंट तांको जो आड़ को नब तो से माने कौन करेंगे से आड़ को गति करेंगे आ जनरली से माने केमती देखा जांती ये जो तुमरो क्राइसोफाइट्स देखिलो तो जनरली से माने केमती देखा जांती से माने एमती देखा जांती पिला देखो एटा तांकर माने करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हे गला क्राइसोफाइट्स रो एटा माने तांकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हे गला तार सेल वॉलटा तुमको एमती देखा मिलिबो सेल वॉलटा तुमको एमती देखा मिलिबो सेल वॉलटा दुईटा ओवरलैपिंग सो केस बेले तुमको देखा मिलिबो साबुन केस देखछो तो साबुन केस सोप केस तो सेटा केमती थाए दीटा जो प्लास्टिक ता जो थाए तो दीटा कोन थाए ना गोटे ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बेले तुमको देखा जाए सेत में हम ता कोन कर दे पारू ना इजीली बंद कर दे पारू तो सेमती तमर क्राइसोफाइट रो तमे जदी सेल स्ट्रक्चर देखबा को पाइबो तुम जो देखिए एटा तो मन तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गला तार सेल वॉलटा देखिबो तमे एमती ना ओवरलैपिंग सेल वॉल तार तमे देखिया को पाइबो सेल वॉल स्ट्रक्चर्स तमे देखिया को पाइबो एंड द सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल एज सिलिका ता माने सेमानंगर जो सेल वॉलटा कोथरे तयारी हे थाए सेलुलोज as well as सिलिका आ गोटे मटेरियल देखा मिलिबो सेटा होची हमर कोन ना सिलिका आ गोटे मटेरियल हमको देखा को मिलिबो सेटा होची कोन ना सिलिका देखा को मिलिबो ओके तो सिलिका कोन सिलिका होची तमरो माटी भलिया गोटे स्ट्रक्चर जोटा कि कंप्लीटली गोटे इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर स्टोन भलिया गोटे छोट छोट स्टोन भलिया गोटे स्ट्रक्चर सेटा इनसॉल्युबल इन वाटर तो जेते बेले कोन हुए ना ये जो डायटम्स तुम देखुचो से जिते डेड हो जाती मरी जाती जिते तो से कौन करती ना तुम सरफेस रे तुम जो वाटर तुम रहा जो ग्राउंड सरफेस रे तो से जमा हो जाते डिपोजिट हो जाते से तो डिपोजिट हवा द्वारा कौन हम धीरे 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 से कौन करती कंप्लीटली गोटे सर्टन टाइम पर गोटे कौन हुए गोटे सर्टन टाइम पर देखो पूरा डाइएटोमियस गोटे आर्थ फॉर्मेशन कर दियंती से गोटे माटीर गोटे लेयर से गोटे फॉर्मेशन कर दियंती है तो सहीटा को कहुँ तुम कौन बेले बेले कहुए कौन डाइएटोमियस आर्थ माने गोटे से माने डायटम रो गोटे लेयर फॉर्मेशन कर देले तुम जो सिलिका देखुच जो तुम देखिलो सेल वॉल रे तुम देखिलो कि गोटे फर्स्ट होची कोन सेल्युलोज रहउची सेकंड तुम रहउची सिलिका रहउची दिस सिलिका इज indestructible it means it cannot be dissolved, it cannot be destroyed by any enzymes, that's why they are deposited on the surface of the earth okay तो सेमाने सेति पई कोन हे जाउछंती ना सेमाने सरफेस रे कोन हे जाउछंती ना डिपोजिट हे कि रहि जाउछंती कंप्लीटली गोटे सर्टेन टाइम परे जेतबेले कोन होची ना धीरे धीरे टाइम पास होची जेतबेले कोन होची धीरे धीरे सेमाने मरि गले माने कर सेमानकर अनफेवरेबल कंडीशन पळे आसला तो सेमाने डेड हे गले तांकर जो भीतर जहा भी सब रहिला साइटोप्लाज्म कंटेंट रहिला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर जहा भी सब कंटेंट रहिला तो दे आर डिसॉल्वेबल से जिनसटा डिसॉल्व हे जिवो बट जेतबेले तुमरो सिलिका टामु कोन कहली दे आर कंप्लीटली इनडिस्ट्रक्टिबल माने से माने डिसॉल्व इजीली हे परंतिनी इजीली से माने डिग्रेड हे परंतिनी तो सेही जिनसटा प्रेजेंट रहे मिलियन एंड मिलियन इयर जाय भी सेटा सेमती पड़ी के रहे आ रही रही कोन जेमती गोटे स्टोन रो सरफेस जेमती गोटे माटी रो सरफेस छोटो छोटो जेमती सॉइल रो सरफेस बळे से माने तयारी कर दियंती तो सेटा को कहा जाय डाइएटोमियस अर्थ ओके क्लियर लेट्स सी व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ द क्राइसोफाइट्स they are microscopic and float passively in water currents माने जेतु तांकर फ्लैजेला नाही मु कहली जेतु फ्लैजेला थिले फ्लैजेला कोन गोटे टाइप रो मोटिलिटी स्ट्रक्चर फ्लैजेला थिले वाटर करंट फ्लैजेला थिले से जो पटको चाहि थांते से पटको निज ओन व्हील रे से माने जाई पर थांते जेहेतु फ्लैजेला एब्सेंट अछि तो वाटर करंट ताको जो पटको नब से माने से पटको कोन करिवे मूव करिवे से पटको से माने जिबे ओके they are microscopic obviously
आम जमी पढ़ले दे आर यूनिसेलुलर माने हमको खाली आखिर देखा जीवेनि तो सेठी कौन होगा से माने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गले आउ जेहेतु से माने कौन करती पैसिवली फ्लोट करती वाटर रे हला तो सेथिपई सेमानंकु कौन कहा जाए सेथिपई सेमानंकु कौन कहा जाए कि सेमाने कौन कले ना प्लैंकटन्स बेले बेले भी तांको कहा जाए कहीं ना दे आर द चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस ये देख मुझे टिके आगुरी तुम कहती कि से जो सेलुअलटा थाए सेटा दुईटा ओभरलैपिंग सेल्स को लेकिन तैयारी होता है ठीक है जमी तुम गोटे देखुच सोप केस देखुच दुईटा ओभरलैपिंग सेल्स को लेकिन तैयारी होता है ओके आउ से जो सेलुअलटा देखुच इट इज कम्प्लीटली कौन इनडेस्ट्रक्टिबल कहीं से सिलिका प्रेजेंट थाए डायटोमियस आर्थ विषय तुमको एबे टिके आगुरी कहूली डायटोमियस आटोमियस आर्थ माने कौन जेहेतु सेलुअल रे कौन रोची कौन प्रेजेंट रोची को कंपोनेंटा प्रेजेंट रोची ना सिलिका प्रेजेंट रोची तो से सिलिकाटा आम जानले कि इनडेस्ट्रक्टिबल तो से तुम इयर्स आउ इयर्स धरवा द्वारा कौन है से पड़ी रही था आ गोटे सर्टन टाइम पर तुम देख एमती है तुम भाव एति जो तुम देखुच डायटोमियस आर्थ तुम जो एति तुम देखुच गोटे सैंड माउंट टाइप तुमको देखा मैंने या भितर मिलियंस ऑफ तुम डायटम डेड हो जाए से तुमको एति कौन कराऊँ ना गोटे सॉइल टाइप तुमको जिनस मिलूँ ओके डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस चीप प्रोड्यूसर कौन जमती आमर इफ यू विल लुक इनटू द फूड चेन हु कम इन द प्रोड्यूसर कैटेगरी ग्रीन प्लांट्स से माने प्रोड्यूसर कैटेगरी रे आसुछंती प्रोड्यूसर माने कौन से माने कौन करछंती ना निज खाद्य से निजे प्रस्तुत करि पारछंती दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड दे आर गिविंग फूड टू द नेक्स्ट कैटेगरी नेक्स्ट लेवल ओके नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेमती ओशियन रे तमरो चीप प्रोड्यूसर को माने एमाने होचंती डायटम्स ओके